میری جب شادی ہوئی تھی تو آبویسلی ینگ ایج میں انسان, حالانکہ آج کل سمجھدار تھی میں, ٹھیک ہے, 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی. لڑکیاں ہوتی ہیں نہ سمجھ, لیکن میرے اندر کافی سمجھ تھی. اب یہ بھی ایک جو خوش نصیبی ہوتی ہے کہ آپ کو شوہر بہت اچھا ملے, ٹھیک ہے نا. آپ کی زندگی وہاں سے, میں سمجھتی ہوں عورت کی زندگی شادی کے بعد لڑکی کی سٹارٹ ہوتی ہے. نہیں ہے پرابلمس تو بس پھر وہاں سے چیزیں, جرنی الگ رخ لے لیتی ہے. میرے اندر یہ تھا کہ میرے ساس سسر سب بہت اچھے تھے, میری نند سے بہت اچھی دوستی تھی, لیکن پرابلم تھی جیسے شوہر سے. میں ساری باتیں سنتی بھی تھی, کرتی بھی تھی, یہاں تک کہ بالکل کبھی میں نے اپنی رسپیکٹ نہیں کرائی. جو میں بات کہہ, میں نے اپنی رسپیکٹ کبھی نہیں کرائی, لٹرلی میں بتا رہی ہوں, بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ. میری ماں نے جب دیکھا کہ وہ میری نیچر جانتے تھے اور چیزیں وجوہات میں اوور آل وہ بتا رہی ہوں, میری ماں نے مجھے بولا کہ تم کیا لڑکی ہو, کوئی مجھے دیکھ کے نہیں کہے گا کہ امبر ایسی ہوگی جو ایک وہ ہے. ہمیں لگتا ہے جو تیار ہوتا ہے, مطلب لوجین کی زندگی نہیں, یار جیسے میں کر رہی ہوں, بات کر رہی ہوں تو یہ اس کا تیز ترار ہوگی, نہیں. میں لٹرلی یقین کرو کہ میری ماں نے کہا بیٹا غلط بات پہ تھوڑا بتاؤ, سمجھاؤ, ٹھیک ہے نا. بول بول کے میرے اندر کانفیڈنس آئے. یوں میں کانفیڈنس تھا, لیکن یہاں کہ نہیں بری بات ہے, نہیں بولنا, میرے اندر وہ تھا. یہ بھی نہیں میرے ماں باپ ہم لوگ کہ بیٹا یوں کرنا ہے, کبھی نہیں. آج تک یہ چیزیں نیچرلی. ساس سسر بہت اچھی تھی, میں کہتی تھی کوئی بات نہیں. میرے ساس سسر کتنے اچھے, میری نند اتنی اچھی ہے. جہاں بولنا ہوتا تھا میں ان کے لیے بولتی تھی, اپنی نند کے لیے اپنی میاں سے لڑتی تھی. میں کہا نہیں, اپنے سسر سے بات کرتی تھی. اپنے لیے کبھی لڑی ویسے؟ اپنے لیے کبھی بھی نہیں. میں ان سے کہتی تھی یہ دیکھیں گے تو میرا بیٹا ہے بس. بیسکلی ان کو کسی نے ٹوکا نہیں. بچپن سے نا آپ کے بعض ماں باپ نا خود سہ لیتے ہیں, بچے نے جو کہہ دیا they don't tell them بیٹا یہ غلط بات ہے. وہ بس کہتے ہیں جو اسپوائل برائٹس ہو جاتے ہیں, جسے کہتے ہیں آپ کو جو مرضی ہے, وہ انسان کو عادت پڑ جاتی ہے. لیکن اگر میں بولتی تو انسان میں سدھار آتا. میں نے نہیں بولا. جب بولنا کیا تو پھر واقعی چیزیں چینج ہوئی, بول کے طریقے سے. تو وہ چیزیں میں نے رسپیکٹ نہیں کرائی اپنی. گالی بھی سن لی, فلاں بھی سن لیا. شروع میں ایک دو یہ تھا کہ ایک آدھ دفعہ تھپ کھا لیا, لات بھی کھا لی. ایک میں بات کہہ رہی ہوں ایسی, لیکن اس میں مجھے یاد ہے میرے باپ نے تب بھی مجھے بولا تھا, دیکھ تو میری بیٹی ہے نا, اگر مار کھائے گی بھلے تو 2 گھوسے میں, کہ آج بھی ان کے الفاظ اللہ انہیں جنت نصیب کرے, بلا وجہ کی بات پہ تمہیں کوئی مارے یہ برداشت, ہم نے آج تک نہیں مارا, تمہیں دوسرا انسان کیسے ہاتھ اٹھائے بھلے 2 گھوسے کھا لینا, لیکن اپنی رائٹ. تو یہ چیزیں ہیں دیکھو, مطلب والی ایسے ہم نہیں ہے کہ بدتمیزی کریں یا ہم وہ نہیں, مگر ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی. اب جا کے میرے اب اگر ہو تو میں کسی کی برداشت نہیں کروں گی. میں نے بہت چیزیں برداشت کی لوگوں کی. یہ آپ نے سیکھا ویسے کتنے عرصے بعد, کتنے سالوں بعد آپ نے بات سیکھی ویسے؟ میں تو اب جا کر, اب ظاہر سی بات ہے اتنے سال ہو گئے, آئی تھنک کوئی 20-25 سال کے بعد جا کے عقل آئی کہ یار اپنے لیے بھی تو کچھ بولو. رائٹ ناؤ اب جیسے اب کچھ غلط ہے, کوئی مجھے جھڑک دے گا, بدتمیز ہے, میں ایک رسپیکٹ میں نہیں بولوں گی, لیکن ایک لمٹ ہوگی, وہاں میں بولوں گی. اچھا, بہت سے لوگوں پہ باؤنڈری سیٹ کر دینا بھی آپ کی ایک طرح سے سیلف لو میں آ جاتے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے نصرت راولپنڈی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام مدیحہ, کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے. نصرت بول رہی ہوں, مسز حنیف. میری پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی اور آپ کے یہ تینوں جو گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں نا, اور میں نے سے بات ہوئی تھی, اور کیا نام ہے جو ابھی بول رہی تھی, تو میں نے بتایا تھا کہ میں لیلی کی میری فرینڈ ہے چائنیز, اور میں ان کا پارلر ہے ریسٹورینٹ میں ادھر جاتی ہوں. اور میں ایک بات بتاؤں, ابھی جو ہے نا فیصل جو بیٹھی ہوئی ہیں, انہوں نے اتنی پیاری بات کی ہے. تو مجھے بھی لوگ پتہ ہے یہاں پہ میں نے اپنا ہیئر اسٹائل رکھا ہوا ہے, تو مجھے ساتھ جرمن لیڈی کہتے ہیں, اور میں ہاؤس وائف بھی ہوں. میری 3 آرگنائزیشن ہیں, لیکن آج کل میں ٹائم دے رہی ہوں. اور یہ جو مسکرا رہی ہے نا, یہ تو میری فیوریٹ ہے. اور ہینا خواجہ کا بھی بڑا, لیکن جو ہے نا اپنی یہ جو فیصل بیٹھی ہوئی ہے, پھر آپ میرے میاں کو ہی ہائی لائٹ کر رہی ہیں نا.
नहीं नहीं, जो फैशन, हाँ चलो उनको हाईलाइट कर रही हूँ, लेकिन जो आपने बात की है ना वो मुझे इतनी अच्छी लगी है कि मैंने अपने आप को देखा कि मेरा कौन सा पोज अच्छा लगता है। और जो हिना ने पहने हुए ना ड्रेस, मैंने सेम वही पहना हुआ है। मैंने अच्छी बार स्टाइल करके मतलब स्टार्ट करके अपने मियाँ की मैं क्या आपने अब जो है ना मैं सुबह का टीवी देखूंगी, बिल्कुल मैंने वही ड्रेस पहना हुआ है जो हिना जी ने पहना हुआ है। लेकिन ये बात है कि मैं आपने जो ये टॉपिक है ना सेल्फ रिस्पेक्ट का, मैं आपसे एग्री करती हूँ, मैं सुनती सकती हूँ, करती दिल की हूँ। और जो है ना मैं जो है ना जो बात है ना, एक बात करती हूँ कि मैं मुनाफत नहीं करती, मैं जो उनकी कमी पेशी है ना उनके मुंह के आगे करती हूँ। और मुझे ये जो ना तीनों लेडी बैठी हुई है ना, मैं उनसे मैं भी एज में मतलब कि बड़ी हूँ, लेकिन मैं इतनी एक्टिव हूँ और मैं जो हूँ ना जुल्फी की कुल्फी की तरह हूँ रोजों का बाद, इतना मैंने अपने आप को स्मार्ट रखा हुआ है। तो ये बात है कि ये जो नहीं है क्या नाम है, मतलब सब अच्छी हैं, लेकिन आपने मुझे कहा था, मैंने आपको मदिया कहा था, नहीं मैंने सॉरी मैंने आपको चिद्रा कहा था, इसलिए कि मैं आज टीवी पर भी बात करती थी चिद्रा के साथ। और मेरे साथ जो रह रहे हैं ना वो गैरिजन स्टेट के, उनकी मिसिस का नाम भी चिद्रा है, तो मेरे मुंह में से चिद्रा निकला तो आप कहते नहीं हंस रही थी, मेरा नाम मदिया है। और मुझे जो मतलब आपने आज से मेरा नाम चिद्रा पहले आपकी सबसे पहली आपको याद आया तो कह रही थी कि मैं ट्विंटी आऊंगी, मैं तो मोस्ट वेलकम, मैं आपको पीसी में इनवाइट करूंगी, आप आएंगे। और अच्छा वैसे मुझे बताएं आपकी एज क्या है? अच्छा मेरे नहीं, मैं पंजाबी भी बोलनी है, मैं पठान की हूँ, मेरे फादर आर्मी में थे, आर्मी के मतलब, लेकिन मुझे मैं पता क्या किया, दिल होना चाहिए जवान से उम्र की रखिए। बिल्कुल सही बात, बिकॉज आई रिमेम्बर लास्ट टाइम आपने बताया था तो आपने बताया था आप इतनी जिंदा दिल है, मैं आपकी कॉल मुझे याद आ रही है और फिर हमने बड़ा सीखा था कि एक बात बताऊँ, एक बैड न्यूज थी कि कल जी बोले जी बताइए। हाँ जी, हालांकि देखिए मैं आपके साथ कैसे बोल रही हूँ, और आपको पता होगा कि एक बैड न्यूज कि मेरे जो है ना सच्ची सीता की कल डेथ हो गई है। और मैं आज दूसरा दिन, आज मैं अपने घर बैठ के टोर में हूँ, और आपको पता है कि जो अपनी जो बात होती है ना, तो वो मतलब जिस तरह भी है, लेकिन वो बातें जो ना पर्सनल जो है ना, और हिना जी और दूसरी क्या नज़र जी बहुत शुक्रिया आपका, आप टेलीविजन देख रही हैं, एनर्जी कितनी अच्छी है तारीफ और आप लोग लग रहा है और आप लोग हमें अप्रिशिएट करें, बहुत अच्छा लग रहा है। बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगे कि अगर मैं देखूं कि जब सुबह हमारा शो आता है तो मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखती हूँ, कहते हैं हम आराम से हम भी हल्के से तैयार होकर बैठ जाते हैं और हमें लगता है अभी तुम्हारे शो में बैठे हुए मुझे इतना अच्छा साउंड कर रहा है। आपको बात बताऊं मदिया, मुझे इससे याद आया कि कोविड के ज़माने में क्योंकि लोग घर से काम कर रहे थे, ऑनलाइन काम कर रहे होते थे, तो मैंने अपने मियाँ से एक चीज़ें सीखी थी, है ना, आप जिंदगी में सीखते चले जाते हैं। बिल्कुल। वो सुबह उठते थे, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज एन अर्ली राइजर। सुबह उठ के जो उनकी नॉर्मल रूटीन थी, नहा धो के तैयार होके कपड़े बदल के परफ्यूम लगा के, अब मैं नीचे स्टडी में जा रहा हूँ, अब मैं जाके अपना काम करने लगा हूँ। तो आई यूज्ड टू लाफ एट हिम, मैं कहती आप खुशबू लगा के कहाँ जा रहे हैं, मतलब वेयर आर यू गोइंग टू गो? He said it's for me. हाँ भाई, मुझे अगर ऑनलाइन भी किसी से बात करनी है कुछ है तो मैं अपने नाइट में बैठ के तो नहीं करूंगा। और इसे मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि ऊपर शर्ट पहन ली और टाई लगा ली और नीचे आपने शॉर्ट्स पहनी। He said नहीं, ये आपके अपने लिए। यस, आप ये नहीं कि आपने कोई बहुत महंगी चीज पहनी है, आप नहा धो के तैयार होके वेल ग्रूम्ड। और मुझे उस चीज से ख्याल आया कि जब हम नमाज पढ़ते हैं, हमने बचपन से यही सीखा है ना कि बेटा नमाज पढ़ने लगो तो नहाकर खुशबू लगाकर। मेरी नानी क्या करती थी, आप अल्लाह ताला के सामने आप सोचें कि आपने किसी बादशाह के दरबार में जाना होगा तो आप ऐसे तो नहीं चले जाएंगे, बिल्कुल आप तैयार होके जाएंगे। तो आप इतने बड़े शहंशाह के दरबार में जाते हैं, शहंशाहों का तो आपको किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है। बिल्कुल। तो ये भी जो चीज़ है ना, अपनी प्रेजेंटेशन, बहुत मैटर, अपनी जिस्मानी सेहत, अपनी ज़हनी सेहत, अपने दिल का सुकून, अपने साथ नरम रवैया रखें, बी काइंड टू योरसेल्फ। अच्छा जैसे आपने भी अंबर जी की हमने बात भी सुनी और ऐसी बहुत सारी मैंने देखा है कि
लड़कियां, क्योंकि हमें देखें वही बात है ना, हमारी लड़कियों की परवरिश ऐसी की जाती है कि हमें एक तरह से सब्र करने का कहा जाता है, हमें मन मारना जो है ना वो बचपन से सिखाया जाता है। वो कहते हैं ना भाइयों को लड़कों को हमारे कल्चर में, मैं अपने घर की बात नहीं करी लेकिन यूजुअली हमारे कल्चर में है कि भाइयों को ज़्यादा अच्छा खाना दिया जाएगा, उसको बोटी का पीस भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा, उसका स्कूल भी अच्छा होगा, उसकी यूनिवर्सिटी भी अच्छी होगी, उसकी कॉलेज भी अच्छा होगा, उसके लिए जो करियर की जो आप चीज़ें सोचोगे वो भी डिफरेंट हटके होगी। बेटी की आप सोचते हैं इसकी तो शादी कर देना, ये तो पराया है। एग्जैक्ट हमारे बच्ची को पैदा ही मतलब परवाने से चढ़ाई गया कि उसको उसके लिए अपना आप जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसी वजह से मैंने देखा है कि हमारे यहाँ शादी के बाद लड़कियों में जो जिसकी बात आपने की है और जिस आप से गुजरी हैं, ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ ऐसे मराहिल से गुजरती हैं लेकिन उनको पता नहीं कि उन्होंने अपनी कहाँ पे अब एक बाउंड्री सेट करनी। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आके मेरा हिना जी से भी यही सवाल है और मेरा सबा जी से भी यही सवाल है कि हम रिलेशनशिप में रहते हुए ऐसी क्या गलतियाँ करते हैं जिससे हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट एंड देन ऑफ कोर्स सेल्फ लव कॉम्प्रोमाइज़ होता है। लेकिन ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और आज हम बात करें सेल्फ लव के हवाले से। अच्छा, सेल्फ लव में मैं सेल्फ केयर की तरफ भी जाऊंगी लेकिन अभी छोटी छोटी गलतियां जो हम लड़कियां करती हैं ज़रा मैं उस हवाले से भी क्विकली ज़रा पूछूं। फिर मुझे अभी आपकी जो डिलीवरी के बाद जो आप लोग गलतियां करते हैं वो बहुत सारी हमारी बहनें जिनकी शादी नहीं हुई हुई जो कि सिंगल हैं फॉर द लॉन्गर टाइम, वो अपने लिए क्या जो है मुझे लगता है जो गलतियाँ कुछ करती हैं जिनको नहीं पता कि भाई ये भी सेल्फ लव से दूरी है, वो भी डिस्कस करेंगे। इनके ब्यूटी टिप्स भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये इतनी खूबसूरत है, ये अपना ख्याल कैसे करती है ताकि हम भी इन जैसे लिशकते पशकते हसीन हो खूबसूरत हो जाएं। लेकिन उससे पहले मुझे बताएं लड़कियां क्या रिलेशनशिप में रहते हुए गलतियां करती हैं? देखिए, रिलेशनशिप्स हर तरह के होते हैं, ठीक है। मैं बहुत सी ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ जिन्होंने अपने आप को निगेट कर दिया है, अपनी ज़ात की नफ़ी कर दी है अपने माँ बाप के पीछे, अपने बहन भाइयों के पीछे। कुछ ऐसी भी हैं जो अपनी फैमिली को निगेट कर देती हैं अपने काम के पीछे, ठीक है। सो उस सारे सिलसिले में आप भी कहीं पीछे रह जाते हैं। हिना जी, आपका कैसे था अपना बताएं, आपने खुद कैसे इस चीज़ का ख्याल रखा सेल्फ लव का? मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मुझे वही अम्मी मेरी ज़िंदगी का आई थिंक मेरी कहते हैं ना वो एक एक बूंद में मौजूद है। मुझे बचपन से याद है अम्मी एक बात कहा करती थी कि बेटा तुम ज़िंदगी में एक बात याद रखना कि जो आप बाहर से हैं ज़ाहिरी तौर पे हैं वो आज है कल नहीं रहेगा। आप कुछ भी कर लें, एक साइकिल है लाइफ का, वो चलता है और आप इसमें भी शुक्रगुजारी रखें। आपको हर उम्र में अपनी एज को ओन करके लुक योर बेस्ट, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसे ही एक सिस्टम रखा है, उसको फाइट मत करो, उसके साथ अच्छी तरह जीना सीखो। हाँ, लेकिन अपने अंदर वो चीज़ें पैदा करो जो आपको खूबसूरत बनाएंगी। और उसमें बहुत एक बड़ी टिप थी, कभी इतने मीठे ना हो कि कोई तुम्हें निगल जाए और कभी इतने कड़वे ना हो कि कोई तुम्हें थूक दे। तो ये जो फाइन लाइन है ना, उसमें आप ही की सेल्फ रिस्पेक्ट और आप ही का सेल्फ लव होता है। क्योंकि अगर आप इतने मीठे हैं कि कोई आपको घोलकर पी जाएगा और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, या आप अपने चक्कर में इतनी आपकी अना बन जाती है कि आप को अपने आगे कोई नजर ही नहीं आता, तो वो भी आपको दुनिया में फिर पीपल विल शन यू एंड देन फिर देन इट्स अ कर्स। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं नवीन रिजवान लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम।